बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 3 हमारा स्टार्ट हो चुका था। यूनिट 3 में हमने फ़िशिंग वाला पोर्शन पहले कर लिया था और इसके अंदर जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि दो चीज़ों को डिस्कस किया गया, एक तरफ टीचिंग है और दूसरी तरफ फ़िशिंग है और दोनों में कोई लिंक नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन हमने उस दिन बात की थी कि एक का ताल्लुक वो चूँकि सर्विसेज इंडस्ट्री के साथ है, टीचिंग एक सर्विस है और फिशिंग चूँकि प्रोडक्ट्स का उसका ताल्लुक एक प्रोडक्ट की इंडस्ट्री के साथ है। तो हो सकता है ये एक रीज़न हो, और चूँकि फ़िशिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, और टीचिंग जहाँ अगर हम प्रोफेशंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा प्रोफेशन और एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन कंसिडर किया जाता है। तो लेट्स डिस्कस टीचिंग। टीचिंग क्या है बेसिकली? आपकी बुक में तकरीबन एक पेज या उससे कुछ ज़्यादा the author has discussed teaching. All right, so now we are going to talk about teaching. Firstly, they have said, where does this word teacher come from? If we are living in Sindh, and if we talk about Sindh, it comes from a Sindhi word akhund, and that again the word akhund has come from a Persian word, जिसे फारसी कहते हैं, फारसी ज़बान खानदन से आया है वो, and खानदन means to read. So obviously the word teacher, basically when we start looking into it further, it means it comes from akhund. Akhund again means khandan, and then khandan means to read. So without going into the dictionary meaning of the word teacher in detail, well, it's just 3 to 4 lines they have discussed the meaning. We'll discuss what a teacher basically is and what qualities should a teacher have, or what qualities are there in a perfect teacher. Obviously, I won't say perfect, but trying towards perfection, trying to be one of the, like you say, an ideal teacher, an iconic teacher. What qualities should he or she possess? Well, a teacher is a reader par excellence. Now, this par excellence is obviously kind of a French, you can say, phrase coming in English. There are lots of words that have come from French. बहुत से ऐसे अल्फाज इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हैं जो जर्मन और फ्रेंच से फिर इंग्लिश में उनका यूसेज हुआ है। तो इस तरह से पार एक्सेलेंस भी एक आप समझ लें, पार एक्सेलेंस इज समवट इट वाज यूज्ड इन फ्रेंच लैंग्वेज, और फिर उसके बाद तो एनीवे, अ टीचर शुड बी अ वेरी गुड रीडर, या वो फिर रीडर होता ही है। जो रीडर होता है बेसिकली दैट इज अ टीचर. As compared to the rest of the people in the society, a teacher has to be someone, or a teacher is basically someone who reads a lot and should not only read his particular subject. अपना subject तो obviously पढ़ना ही है. Other than that, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे, देखें, एक चीज़ समझाने के लिए इतनी सारी एग्जांपल्स देनी पड़ती हैं. I'm using the word example over here. That is again coming from British English. American English के अंदर या American variety हमारे teachers कहा करते हैं. Variety के अंदर word example होता है. Anyway, तो अब देखें, एक चीज़ समझाने के लिए टीचर को बहुत सारी एग्जांपल्स की ज़रूरत पड़ती है. तो इफ़ ही इज़ और शी इज़ अ गुड रीडर, he or she would be able to explain his particular subject in a better way. ऑल राइट, अब देखें ये चीज़ें क्लास में फिर हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे. यहाँ एक जस्ट हाईलाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द चैप्टर. सेकेंडली, यहाँ है कि टीचर possesses several personal and professional qualities. देखिए, इस पर्सनल क्वालिटीज़ पर एक कंप्लीट वर्कशॉप हो सकती है. सिर्फ टीचर तो ऑब्वियसली, चूंकि टीचर एक रोल मॉडल होता है क्लास में, तो इस वजह से टीचर के अंदर पर्सनल उसकी क्वालिटीज़, उसकी पर्सनल ट्रेट्स, they should definitely outclass the rest of the people in the society, because a teacher is a role model. Teachers are parents, teachers are language, teachers manners, discipline, everything has to be so inspiring that the students not only listen to him, but they are inspired by his traits, his character, his characteristics, and are able to adopt them in their personal lives.
तो उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होनी चाहिए। एंड एट द सेम टाइम दूसरी बात, उसकी जो प्रोफेशनल क्वालिटीज़ हैं, ऑब्वियसली जो चीज़ एक एक टीचर का अपना प्रोफेशन है, जो चीज़ वो पढ़ा रहे हैं, तो उसके अंदर भी उनकी क्वालिटीज़, उनकी नॉलेज, उनका जो मयार है अपने अपने फील्ड के अंदर, इट हैज़ टू बी ऑब्वियसली wonderful. It has to be so influential that it shows the complete personality of a teacher. All right, next ये बहुत important है. आप किसी भी फील्ड की बात कर लें, सिर्फ टीचर नहीं. A teacher loves his profession, or anybody has to love his profession in order to uh, keep himself in that particular profession throughout his life. देखिए, मैं आपको एक बस यहाँ छोटी सी बात करूँगा, फिर हम बाकी चीज़ें इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस करेंगे. अब आपको कोई किसी चीज़ की लाइकिंग का अंदाज़ा इस बात से हो सकता है कि आपको कहा जाए कि भाई फ़र्ज़ करें आपको एक मौका दिया जा रहा है कि आप दुनिया में जो करना चाहें, ठीक है, आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहें, आप मतलब इंजीनियर बनना चाहें, आप अकाउंटेंट बनना चाहें, आप कुछ भी बनना चाहें, यू आर गिवन अ चांस, आपको वो बना दिया जाएगा. और उस वक्त आप क्या कहेंगे, मैं क्या बनना चाहता हूँ? ऑब्वियसली दैट इज समथिंग विच यू वुड कॉल योर प्रोफेशन. तो अगर टीचर से ये कहा जाए कि आपको तो और वो कहे कि यस, इफ आई एम गिवन अ चांस टू बिकम समथिंग इन लाइफ, आई वुड बिकम अ टीचर एंड नथिंग एल्स, तो उसका मतलब है कि वो अपने प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा उनको लगाव है. तो दैट इज कॉल्ड लव फॉर प्रोफेशन, क्रेज फॉर प्रोफेशन. अ पर्सन इज नॉट रेडी टू डू एनीथिंग एल्स बट टीच, अगर वो टीचर हैं तो. और या कोई और अगर अपने प्रोफेशन में है, तो उनका भी अपने प्रोफेशन के साथ ये एक रिलेशनशिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, देन ऑब्वियसली टीचर इज़ अ रियल टीचर इफ़ ही और शी लव्स हिज और हर प्रोफेशन. आगे चलते हैं. अगर हम टीचिंग की बात करें, तो टीचर बेसिकली ऑब्वियसली अपने करियर, अपने पर्सनल ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोफेशन सब को बहुत ज़्यादा पॉलिश करना और उसको मुसलसल लर्निंग थ्रू आउट द करियर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बट एट द सेम टाइम अ टीचर इज़ समवन हु प्रेफर्स द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स. जी हाँ, स्कूल क्लास ख़त्म हो गई, एक एग्जांपल देके आगे चलते हैं. ठीक है, लेक्चर ख़त्म हो गया, सब कुछ समझा दिया, एक्सरसाइजेज, एवरीथिंग हैज़ बीन डन. सडनली अ बॉय कम्स आफ्टर द स्कूल आवर्स और आफ्टर द क्लास आवर्स, और वो कहता है कि सर सो एंड सो रीज़न है, मैं आपका लेक्चर नहीं समझ सका, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी. देखें, स्टूडेंट के वेलफेयर, टीचर का टाइम हो गया है, शायद उसे घर जाना है या उसके लंच का टाइम है या व्हाट्सोएवर, देयर द टीचर सेक्रीफाइसेस, और वो कहता है कि नहीं, for the sake of my student, I am going to keep aside my timetable, my routine, my schedule, and I will help my student. एक छोटी सी एग्जांपल थी, बहुत कुछ हो सकता है इसमें. ठीक है, स्टूडेंट के कोई और एक ऐसा कोई इशू है, उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, कोई परेशानी है या किसी भी लिहाज से, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर, या रिस्पॉन्सिबिलिटी ना भी कहें चलें, शायद स्कूल तो हो सकता है वो टीचर को, या हमारा लॉ जो है वो टीचर को लायबल ना करता हो कि वो क्लास आवर्स के बाद स्टूडेंट को हेल्प करे. बट उसे क्या कहेंगे आप, एथिक्स कहते हैं कि अ टीचर, अ रियल टीचर इज समवन हु प्रेफर्स द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स. अखलाकी, हमारे जो हमारा जो अखलाकियात का जो हम दर्स पढ़ते हैं, वो हमें ये सिखाता है. हमारा जो कल्चर भी आप कह लें तो वो भी हमें ये सिखाता है कि हमारे जो आप अक़दार हैं, वो हमें सिखाते हैं कि टीचर हैज़ टू मेक श्योर दैट द स्टूडेंट इज सेफ. यहाँ कुछ चीज़ें लिखी हुई भी हैं, आप इससे थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं. रिस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, ये भी आप इसको वेलफेयर में कंसिडर कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा इक्वली पूरी क्लास को ट्रीट किया है टीचर ने, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें इनसाइड द क्लास एंड अगेन आउटसाइड द क्लास, वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बल्कि मैंने अपने कुछ टीचर्स से यूँ सुना है कि उनके फेवरेट टीचर्स वो हुआ करते थे जो आउट ऑफ द वे जाके अपने स्टूडेंट्स को हेल्प किया करते थे. मतलब अपने स्टूडेंट्स के लिए वो कुछ भी कर सकते थे. वो सिर्फ क्लासरूम तक ही पढ़ाना नहीं था, उनको स्टूडेंट को किसी भी तरह की अगर कोई ऐसी परेशानी है
जिससे उन्हें लग रहा है कि उनकी ग्रूमिंग, उनका करियर डिस्टर्ब हो रहा है, तो दे वुड ट्राई दे लेवल बेस्ट टू हेल्प द स्टूडेंट आउट। एनीवे, नेक्स्ट, रिस्पेक्ट ह्यूमन बींग्स। ऑब्वियसली सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, एनीबडी हु इज रिलेटेड टू द सोसाइटी, ऑब्वियसली muashra, human beings, they make a muashra, they make a society, so respect has to be given to the society, or obviously teacher is somebody who has to respect human beings more than anybody else. एक और बात, और बहुत ज़रूरी बात, ponders over sacred writings। ये सिर्फ टीचर का काम तो नहीं है कि वो जो हमारी दीनी किताबें हैं, कुरान करीम है या इसके अलावा अहदीस हैं या जितनी भी दीनी किताबें हैं, सेक्रेड राइटिंग्स हैं, उनमें पॉन्डर करता है, उनमें गौर व फिक्र करता है। जाहिर सी बात है, जैसे आपके बुक में लिखा हुआ है कि टीचर इज समबडी हु रीड्स गॉड्स लॉ रिटन ऑन द ह्यूमन हार्ट्स। जो कुदरत ने इंसान के दिलों के ऊपर जो बात लिखी है, टीचर उसको समझता है, या यूं कह लें उसको सही मानों में समझता है, और फिर शायद उसके ज़रिए से वो इंसान को सही इंसानियत की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। तो ये बात उस वक्त हो सकती है जब उसकी दीनी मालूमात, उसका अपना ताल्लुक अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। स्पिरिचुअली अगर टीचर स्ट्रांग है, then he would be able to make his own students spiritually strong। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात करूं कि मैं, मेरा कोई इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है दीनी किताबों के साथ, और स्पिरिचुअली मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूं, ठीक है, तो ऑब्वियसली एक चीज़ मेरे पास है नहीं, तो मैं उसको आगे कैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? ठीक है ना, जो इंसान के पास जो चीज़ होती है वो उसी को आगे सिखाता है, वो उसी को आगे पढ़ा सकता है। इंग्लिश की अगर बात कर लें चलें, ठीक है, I am teaching English and I myself am somebody who requires a lot of extra tuitions and coaching in English। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, तो जब तक मेरे पास एक चीज़ मौजूद नहीं है, I am not able to teach that to my students। तो इसी तरीके से चूंकि स्पिरिचुअली टीचर का स्ट्रांग होना और फिर अपने स्टूडेंट्स को स्पिरिचुअली मॉरली स्ट्रांग बनाना अपने सब्जेक्ट के साथ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपकी बुक ने उसमें बहुत अच्छे अंदाज से उसको स्टार्ट किया है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ही और शी मस्ट पॉन्डर ओवर सीक्रेट राइटिंग्स। हैज़ थर्स्ट फॉर नॉलेज। जी हाँ, कहते हैं कि टीचर इज़ अ स्टूडेंट थ्रू आउट हिज लाइफ। तो टीचर वो होता है बेसिकली कि जो थ्रू आउट द लाइफ स्टूडेंट रहता है, थ्रू आउट द लाइफ उसकी थर्स्ट फॉर नॉलेज रहती है, एंड ही और शी कीप स्टडिंग थ्रू आउट, और वो सीखता रहता है, सीखता रहता है। ठीक है। लास्टली, प्रैक्टिस इज व्हाट ही प्रीचेस। यस, कि जो वो अपने स्टूडेंट्स को समझाने की, सिखाने की और तरगीब देने की कोशिश करते हैं टीचर्स, he or she must himself or herself practice it। उनका अपना अमल भी उसके ऊपर इतना पुख्ता हो, then it is going to work। बहुत से ऐसे टीचर्स होते हैं कि जिन्हें शायद बहुत कुछ कहना नहीं पड़ता, their personality makes you do it। तो this is what basically this line is trying to explain। A teacher practices what he preaches। ये कुछ जनरल हाइलाइट्स थी जो हमने डिस्कस की हैं। इंशाल्लाह इसको हम कल की क्लास में डिटेल में और आपके क्वेश्चन आंसर्स के साथ करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह।